Okay, hello everyone. In the previous video, we have studied the memory hierarchy and we have also studied the secondary memory structure in detail. Now, in this lecture, we are going to study about the disk scheduling algorithms, right? So, these are just similar like your CPU scheduling algorithms. There you have studied FCFS, SJF, then you also studied round robin algorithm, priority algorithms. Why you studied all those algorithms? Because there were different algorithms and it was like there were different situations according to which we have to actually pick one of the process for execution in the CPU. So if you will follow FCFS, then whatever process has come first it will execute first. SJFS was like the process which require less time will be executed first. Similarly here also there are around six algorithms, six this scheduling algorithms that we will understand one by one. Okay. Also, in the previous lecture, we have studied the structure of your secondary memory and we studied about platter also. You can see this is a platter which is circular in shape, and there the platter is divided into different tracks. So these are concentric circles which are called as your tracks, and every track is further divided into sectors, which is the basic unit of your memory. Now, as I've told you, there were two type of time, seek time and rotational latency. I told you to remember rotational latency. Rotation means you are moving in a circle, right? So, if you are moving from one sector to another sector in a given track, that is called as rotational latency. And what is seek time? If you are moving from one particular track to any of the tracks inside, or from inside to outside, that is called as seek time. And the total, sum of seek time plus rotational latency is called as access time. Fine. Now, the different algorithms are FCFS, SSTF, scan, C-scan, look, and C-look, right? So let's understand it. FCFS and SSTF are exactly similar to your CPU scheduling algorithms. Let's understand it now. Let's first understand FCFS. Now, what is the full form of FCFS? First come, first served disk scheduling. So here what we have to do is, see, these are the different requests, right? So you have to move from one track to another and these are the given track numbers. So what I have done is, if you see this diagram on the right hand side, you can see there are different track numbers given. If you remember the previous example in the last video, I told you let's take uh, 128 tracks, and in every track there was 512 sectors also. So what we are trying to do is, here the different track numbers are given, and as I've told you, in memory the first is represented by 0, and here let's assume that it is 200, right? So these are the different requests given. So this is the order of the request, but what we have to apply, we have to apply FCFS. It means 98 has come first, then 183 has come, then 37 has come. So whatever may be the situation, whatever be the number of movements, we don't care, we simply have to entertain the first request first, right? And in the given question it is said that the head is located at 53. So currently the head is at, you remember what is head here? That is read write head. If you remember what was read write head, let's see the previous example. See, I told you this read write head. This read write head is going to move in rotation if it is accessing the particular sector, and it will be moving in horizontal direction when it is going to reach a particular track. So this it is talking about the read write head. अब लेट्स से अगर आपका ये पर्टिकुलर आपका सेक्टर है जिसको ये पर्टिकुलरली पॉइंट कर रहा है, अब हो सकता है आपका जो आपको एक्सेस करना है पर्टिकुलर सेक्टर वो यहाँ पर है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ ऐसे मूव करेगा, तो करंट से ही तो मूव करेगा, इसलिए ये रीड राइट हेड की पोजीशन, जो करंट पोजीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। तो ये कह रहा है कि अभी करंटली मैं इस 53 को पॉइंट कर रहा हूँ, सो रीड राइट हेड इज पॉइंटिंग एट 53, बट द रिक्वेस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट इज 98। सो 53 से ये डायरेक्टली कहाँ मूव करेगा, यू कैन सी इट इज डायरेक्टली मूविंग टू 98। नाउ आई हैव ऑल्सो रिटन द डिफरेंस हियर, ताकि न्यूमेरिकल बाद में आप बाद में जब इसे टोटल टाइम ऐड करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। So you can see 98 minus 53 is 45. So this two red dots. So from here to here I am moving, or I am also writing the difference between both. Then 98 के बाद जो आपका next request है 183 है, तो आप directly 98 से कहाँ चले जाएंगे, 183 पर जाएंगे. So you have reached to 183. So 98
एंड 183 का हम डिफरेंस करेंगे तो दैट विल बी 85। अब आप लोग सोच सकते हो कि 98 माइनस 53 करना है या 53 माइनस 98, कुछ भी करो, आपको मॉडुलस लेना, तो यू विल नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यू, यू आर गोइंग टू टेक द पॉजिटिव value. So it is actually absolute difference. Either you write 53 minus 98 or 98 minus 53. You have to take the absolute difference. Now 98 minus 183 is 85. After 183 it is reaching to 37. So directly आप कहाँ जाएंगे 183 से 37 पे, तो ये जो टोटल डिफरेंस है ये हमारा 146 है, ठीक है। अब 35 से 37 से आपको डायरेक्टली जाना 122 पे, 37 से आप कहाँ चले गए 122 पे, और जो ये डिफरेंस है दैट इज 85, मीन्स यू आर सब्ट्रैक्टिंग 122 माइनस 37। आफ्टर दैट नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज योर 14। सो आप 85 से डायरेक्टली कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में, और आप 14 पर चले जाएंगे, जो डिफरेंस है वो है 108। और उसके बाद आप 14 से 124 जाएंगे, सो यू अगेन यू विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। आप कहाँ गए 124 पे, 124 माइनस 14 इज 110। देन 124 से आप गए 65 पर, तो 65 यहाँ से 124 से आप डायरेक्टली कहाँ जा रहे हैं 65 पे, तो ये अगेन डिफरेंस क्या है 59, राइट। एंड देन आपको कहाँ जाना है 120 65 टू 67, तो 65 टू 67 क्या डिफरेंस है 2 है। तो आप इस सभी जितने भी टोटल टाइम है ना, ये 45 प्लस 85 1 प्लस 146 प्लस 85 प्लस 108 प्लस 110 प्लस 59 प्लस 2, ये टोटल जब आप ऐड करेंगे तो ये 640 होगा। अब यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है, ये नैनो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, सो वॉट एवर विल बी गिवन इन योर एग्जाम यू कैन राइट दैट, राइट। तो इसने गिवन आपको, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब ये जितनी भी एल्गोरिदम्स हैं अभी हम सिर्फ इसकी वर्किंग पे फोकस कर रहे हैं, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगी कि कौन सा जो आपका एल्गोरिदम वो बेटर है। बट आप इसमें देख सकते हो क्लियरली, आपको दिख रहा होगा मेजरली, अगर इस डायग्राम को आप फोकस करेंगे, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्या मूव कैसे मूव कर रहा है। ऑल्सो ये भी डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वेस्ट किस ऑर्डर में आ रही है, बट अगर इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो ये जिगजैग मोशन में चल रहा है, रैंडम मोशन में, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। तो बेसिकली आपकी जो डिस्क है ना वो बहुत ज्यादा मूव कर रही है लेफ्ट राइट डायरेक्शन में, तो ये बहुत ज्यादा ओवरहेड क्रिएट कर रहा है। और आपने सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में भी पढ़ा था कि जो एफसीएफएस एल्गोरिथम होती है ना वो बहुत ज्यादा टाइम, ओवरऑल वेटिंग टाइम जो होता है बहुत ज्यादा होता है उसका, अगर आपकी इनिशियल प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। लेट्स से फर्स्ट प्रोसेस 100 है, सेकंड है 200, और थर्ड जो है आपकी 20 है, टाइम ले रही है, तो थर्ड वाले को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा पहले वाले दो प्रोसेस की वजह से। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से ओवरहेड क्रिएट होगा, ठीक है। बाकी हम इसके डिफरेंसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट algorithm, that is SSTF, shortest seek time first. Now what is happening in this, again we are given some request, right, and the head is locating at 53. So अब ये हम मैंने यहाँ पे ये डॉट लगाया है यहाँ पे, it means it is pointing, this head is pointing at 53 लोकेशन। अब देखिए, अब आपको जो रिक्वेस्ट ना उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना है, आपने अपनी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो 0 टू, देखो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा जो आपकी रिक्वेस्ट है ना वो 200 का है, ये पूरा जो आपका वैल्यूज हैं, तो हमने ये 0 टू 199 लिख लिया है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो लास्ट क्या होगा 199 होगा, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप 53 पे आप लेफ्ट भी मूव कर सकते हो, आप राइट भी मूव कर सकते हो, बट क्योंकि एसएसटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, सीक टाइम है तो ऑब्वियसली आप समझ जाइए ये किस में मूवमेंट कर रहा है, ये ट्रैक में मूव कर रहा है, राइट, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो करंटली ये 53 ट्रैक नंबर पे है, तो ये 65 पे भी जा सकता है और 37 पे भी जा सकता है इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। बट हमें जाना किस पे, जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा। तो इफ यू सब्ट्रैक्ट 53 minus 65 द डिफरेंस इज 12, and if you subtract 53 minus 37 the difference here is 16. So you can see this is having less seek time, so we will take this one. So आप 53 से 65 पर जा रहे हैं, right, you are moving from left to right from 53 to 65, so difference कितना है दोनों के बीच में 12 है, right। अब आपके पास नेक्स्ट जो पोजीशन है वो 65 है, अब आप 65 से 67 भी जा सकते हैं एंड 37 पे भी जा सकते हैं। अगेन आपको डिफरेंस चेक करना है, आप यहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे, मिनिमम क्या है यहाँ से 2 है, और वहां से अगर आप चेक करेंगे 65 में से अगर आप 37 को माइनस करेंगे तो ये जो डिफरेंस है यू कैन वेरी वेल सी बहुत ज्यादा है। तो हमें क्योंकि शॉर्टेस्ट सीक टाइम यूज करना है, तो यहाँ से सीक टाइम जो है बहुत कम लग रहा है, तो वी विल मूव इन अगेन इन द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, दैट इज 65 टू 67। Again if you want you can go again in the left direction or in the right direction. 7 we can move to right direction as well as we can move to the left direction, but you can see 67 से 98 के बीच में जो डिफरेंस है वो 31 है, और 67 से
37 के बीच में जो डिफरेंस है वो है हमारा 30, राइट? तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में डिफरेंट सीक टाइम कम है, तो वी विल मूव टू द लेफ्ट साइड. सो 67 से वी विल मूव वेयर, टू दिस लोकेशन 37. और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वी हैव रिटन दैट आल्सो 30. 37, राइट? सो वी कैन गो फ्रॉम 37 to the request 98, or 37 to 14, right? The other request is 14. So you can clearly see that the difference between 37 and 14 is less, which is 23. So we will move from this ट्रैक नंबर 37 टू 14 एंड द डिफरेंस इज 23. उसके बाद अब आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो सारे राइट साइड में है, तो यू कैन डायरेक्टली मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. 14 टू 98, द डिफरेंस इज 84. then 84, 98 to 122, difference is 24. then 122, 124, difference is 2. and then 124 to 183, the difference is 59. आप इन सभी सीक टाइम को जब ऐड करेंगे तो टोटल सीक टाइम जो आपका होगा वो होगा 236. यानी कि टोटल रीड राइट हेड मूवमेंट्स कितने हुए इसमें? 236. और प्रीवियस एग्जाम्पल में आप देखेंगे वो कितना है? 640. तो बहुत मेजर रिडक्शन हुआ है आपका सीक टाइम का. तो दैट इज वाई सीक टाइम इज बेटर in case of your SSTF as compared to your FCFS. Now moving to the third algorithm, that is scan scheduling algorithm. Now this algorithm is also called as elevator algorithm, and elevator is basically what? Your lift. Now let's understand how it is, why it is called as elevator algorithm. So यहाँ पे भी हमारे पास given request है 98, 183 up to 67. हेड जो है बेसिकली हमारा कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ पे लोकेट है? 50 पे. तो हेड इज लोकेटेड एट 50th पोजीशन. सो ये देखिए इसमें एक और चीज ऑलरेडी गिवन होगी आपके एग्जाम में, डिस्क आर्म इज मूविंग टूवर्ड्स 0. ये आपका 0 पॉइंट है, और डिस्क आर्म आपकी 50 पे नहीं है, मतलब 50 तो आपका हेड है, बट ये मूव किस डायरेक्शन में कर रही है? अभी तो ये 50 को पॉइंट कर रहा है आपका हेड, बट ये बताना चाह रहा है कि आपका जो डिस्क है उसका जो मोशन है वो किस तरफ चल रहा है? 0 की तरफ चल रहा है. तो हमें कुछ नहीं करना है इस पर्टिकुलर केस में, आपको 50 से 0 की तरफ जाना है, और जो जो आपके रिक्वेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जो जो आ रहे हैं वो आप फुलफिल करते जाएंगे. तो जब आप 50 से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो जो पहली रिक्वेस्ट आपकी फुलफिल होगी वो है 37. सो 50 से डायरेक्टली कौन से ट्रैक नंबर पे आप चले गए? 37. और आप इसके डिफरेंस को यहाँ लिख लेंगे, दैट इज 13, राइट? फिर उसके बाद 37 से आपकी जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आप यहाँ देख सकते हैं वो कौन सी है? 14. सो आप 37 से 14 की तरफ जाएंगे तो आपका डिफरेंस क्या है? 23. फिर 14, अब इसमें देखिए स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या हो रहा है, ये 14 से 0 पे भी आ रहा है. तो लिफ्ट क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जैसे लिफ्ट में आपके 10 फ्लोर्स है, तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से वो ऊपर कहाँ जा रहा है? लास्ट फ्लोर तक जा रहा है. लास्ट फ्लोर से जब वापस आ रहा है तो फिर ग्राउंड फ्लोर को भी टच कर रहा है. तो आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है कि ये 14 से 0 पर भी जा रहा है, जबकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 तो आपका ट्रैक नंबर है ही नहीं. आपकी जो रिक्वेस्ट है उसमें 0 ट्रैक नंबर है ही नहीं. बट इट इज एलिवेटर एल्गोरिथम. ये क्या करेगा? लास्ट जो आपका कॉर्नर होगा ना उस तक उसको भी एक्सेस करेगा. तो ये जो टाइम है ना, अननेसेसरी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट कर रहा है. देखो 40 से 0 जा रहा है, अब 0 से कहाँ जा रहा है? 60. फिर ये कहाँ जा रहा है? 65 पे जा रहा है. तो बेसिकली ये जो टाइम है इतना यहाँ से 14 से 0 का और 0 से 65 का, ये वेस्टेज है, मतलब ओवरहेड है, अननेसेसरी ओवरहेड है. ये हमें करने की जरूरत नहीं थी. बट इसका जो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगा हमारी नेक्स्ट एल्गोरिथम में. बट ये एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करेगी कि आप पूरा लेफ्ट तक जाओगे, लेफ्ट मोस्ट एंड तक जाओगे, और अगेन राइट मोस्ट एंड तक भी जाओगे. तो उसके बाद ये आपने अननेसेसरी ट्रैवर्स किया. उसके बाद आप क्या करोगे? 65 से ऑब्वियसली डायरेक्टली, तो पहले आपने सारे जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी आपका आर्म मूव कर रहा था वो सारे के सारे रिक्वेस्ट आपने एक्सेस कर लिए. देखिए 50 पे, फिर सीधा 37, फिर 40, और 0 अननेसेसरी आप गए, बट ये इसका एल्गोरिथम का पार्ट है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो. एंड देन 40. अब जब हम राइट साइड मूव करेंगे तो जो जो रिक्वेस्ट आपके आते जाएंगे सबको आप फुलफिल करोगे. 14 से डायरेक्टली हम 65 पे जाएंगे, फिर 67 पे, क्योंकि पहले ये इसी ऑर्डर में आ रहे हैं, फिर 98, 122, 124, 183. तो आप देख सकते हैं किस तरह से मूव कर रहा है आपका एल्गोरिथम. क्योंकि ये लास्ट रिक्वेस्ट है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट योर यू नो दिस स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. अब हम नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ते हैं एंड विल सी व्हाट इज द डिफरेंस. Now see, the next algorithm is C-scan algorithm, which is also called as circular scan. अब इसमें क्या होगा? आप देखिए सेम आपके पास रिक्वेस्ट दी हुई है, आपका जो हेड है वो 53 लोकेशन पे है, और ये जो मैंने यहाँ एरो दिखाया हुआ है इसका मतलब ये है कि जो आपका आर्म है ना, रीड राइट आर्म, वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? राइट साइड मूव कर रहा है, यानी कि 199 की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ. ठीक है. पहले जो आपका आर्म था वो इस साइड मूव कर रहा था, अब ये इस साइड मूव कर रहा है.
तो जस्ट लाइक दैट प्रीवियस एग्जांपल की तरह ये क्या करेगा, जब ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो जो जो इसके रिक्वेस्ट आते जाएंगे उनको ये फुलफिल करेगा, राइट। तो 53 के बाद कौन आया, 65, डिफरेंस है 12। फिर 65 टू 67, डिफरेंस इज 2। 67 टू 98, ट्रैक नंबर, difference is 31. 98 to 122, difference is 24. 122 to 124, difference is 2. Then 124 to 183, difference is 39, 59. Now from 180 to, अब ये देखिए इसमें क्या है, क्योंकि स्कैन एल्गोरिदम है, तो स्कैन एल्गोरिदम में क्या डिफरेंट होता है, स्कैन एल्गोरिदम आपके दोनों एंड्स को ट्रैवर्स करता है, ठीक है। चाहे वो स्कैन एल्गोरिदम हो चाहे सर्कुलर स्कैन हो, दोनों स्कैन एल्गोरिदम्स आपके एक्सट्रीम एंड को भी ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ पे 183 से ये कहाँ गया लास्ट पे, क्योंकि 199 आपका है भी नहीं, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द एल्गोरिदम इट विल ट्रैवर्स दिस अननेसेसरी पार्ट आल्सो व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट यस अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम वी हैव टू ट्रैवर्स। तो आपने 183 से 199, ये 16 जो है ना सीक टाइम एक्स्ट्रा आपने ट्रैवर्स किया। अब यहाँ 199 से अब आप कहाँ जाओगे, अब देखिए इस एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस था, अगर आप पुराने एल्गोरिदम को देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ स्कैन कर रहा है और जब वापस टर्न कर रहा है तो जो जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं उनको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये फिर भी ऑप्टिमल है, बट अगर आप इसको देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये टर्न करेगा एक्सट्रीम एंड पे जाने के बाद ये इस कुछ भी किसी की भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करेगा, ऐसे खाली जाएगा बिल्कुल, देखो बिल्कुल इट इज जस्ट स्कैनिंग। तो यहाँ पे इसने किसी की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं की है और वापस से जैसे ये जीरो पे लास्ट कॉर्नर पे आ जाएगा तो ये क्या करेगा, जीरो से जैसे ही फिर से लेफ्ट टू राइट टर्न करेगा तो जो भी पहली रिक्वेस्ट है वो है 14, उसको स्कैन करेगा और फिर 37 को, ठीक है। तो इसमें लॉस क्या है हमारे पास, चाहे अगर मान लीजिए ये अगर इस डायरेक्ट अगर मैं पुराने एल्गोरिथम को देखती हूँ, अगर ये वाला हमारा रिक्वेस्ट होता तो ये क्या करता, पहले यहाँ से पूरा लेफ्ट साइड तक जाता, बट यहाँ ये पूरा क्या रहता, खाली रहता, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं करता, फिर वापस क्या करता, लेफ्ट टर्न करता। तो आप नोटिस कर सकते हो कि इसने क्या किया है, अगर ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो ये लेफ्ट टू राइट में जो रिक्वेस्ट आएंगे उन्हीं की रिक्वेस्ट पूरी करेगा। देखो लेफ्ट टू राइट सारी रिक्वेस्ट पूरी हुई, बट जब राइट टू लेफ्ट आया तो ये आइडल है, ठीक है। बट फिर से जब लेफ्ट टू राइट में मूव कर रहा है तो ये सारी रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा है, बट ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, पहले सारी रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा है और जैसे ही टर्न कर रहा है फिर वापस जो जो रिक्वेस्ट आ रही है लेफ्ट टू राइट वो भी फुलफिल कर रहा है। तो आई होप ये दोनों आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, राइट। अब देखिए जब भी अब जो नेक्स्ट एल्गोरिथम आएगी उसमें जब भी सर्कुलर आएगा तो ऐसा ही होगा कि जब आप टर्न करोगे ना तो आपकी ये आइडल जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो जब आप ये टोटल करोगे ना सम तो ये 382 आएगा आपका हेड मूवमेंट। नाउ अब नेक्स्ट एल्गोरिथम इज लुक लुक डिस्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब इसमें क्या होगा, आप देखिए क्या इसमें डिफरेंट क्या है। वही हमारे पास सेम रिक्वेस्ट है, आपका जो हेड है वो 53 डायरेक्शन 53 पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, तो ये 53 आपका ट्रैक नंबर है। और ये क्या कह रहा है, दिस एरो इज पॉइंटिंग कि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करता रहेगा, 52 3 टू 65 देन 67 ऐसे करते करते जाएगा। बट इसमें क्या डिफरेंस है, तो यानी कि हमने नोटिस किया कि स्कैन एल्गोरिदम जो थी, स्कैन थी या सर्कुलर स्कैन थी, वो क्या कर रही थी, एक्सट्रीम एंड्स को ट्रैवर्स करती। बट लुक एल्गोरिदम थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है और ये कहता है कि 199 और ये जो जीरो जो मेरे एक्सट्रीम एंड्स हैं, जो मेरे रिक्वेस्ट का पार्ट नहीं है, इनको मैं स्कैन नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये 183 इसकी लास्ट रिक्वेस्ट थी लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, तो इसने 183 के बाद डायरेक्टली टर्न कर लिया, राइट। ये एग्जैक्टली किसके जैसी है, ये एल्गोरिदम अगर आप नोटिस करो तो बिल्कुल आपकी स्कैन एल्गोरिदम की तरह है, बट इन दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस है, स्कैन एल्गोरिदम क्या करती है, एक्सट्रीम एंड तक जाती है फिर टर्न करती है, बट आपकी लुक एल्गोरिदम क्या करेगी, जैसे ही आपकी लास्ट रिक्वेस्ट आएगी तो इस 14 के बाद डायरेक्टली टर्न कर जाएगी। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्कैन एंड लुक। स्कैन और लुक बिल्कुल एक जैसे है, बस द ओनली डिफरेंस क्या है, स्कैन में हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं एक्सट्रीम एंड वाला। और अगर आप वापस यहाँ आ जाएंगे, अगर आप नोटिस करेंगे लुक एल्गोरिदम में तो क्या हो रहा है, जब ये स्कैन कर रहा है तो जैसे इसकी लास्ट रिक्वेस्ट आ जाएगी वैसे ही ये टर्न कर लेगा, एंड को ट्रैवर्स नहीं करेगा। और वापस जब टर्न मूव करेगा तो ये इसकी जो जो देखो लेफ्ट टू राइट इसने ट्रैवर्स किया और राइट टू लेफ्ट में भी जो जो रिक्वेस्ट आ रही है उनको फुलफिल करता गया और जीरो तक नहीं जाएगा ये। तो इसमें टोटल हेड मूवमेंट है 299। और अगर मैं इसी एल्गोरिथम को सी लुक बोलूं, सर्कुलर लुक बोलूं, तो क्या होगा, सर्कुलर लुक लुक एग्जैक्टली किस जैसा होगा, सर्कुलर स्कैन जैसा होगा। तो क्या डिफरेंस होगा दोनों में, अगर यही मैं अगर इसको सर्कुलर लुक से करना चाहूंगी तो ये लेफ्ट टू राइट ऑलरेडी मूव कर रहा था तो ये ऐसे मूव करता जाएगा बट एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाएगा क्योंकि ये लुक एल्गोरिथम है।
तो ये 183 पे ही टर्न कर जाएगा, बट जब 183 पे टर्न करके लेफ्ट साइड जाएगा तो ये जो है ना इसका पीरियड आइडल रहेगा, यहाँ पे ये कुछ भी स्कैन नहीं करेगा। बट कहाँ रुक जाएगा, जीरो पे नहीं जाएगा ये, क्योंकि जीरो इसकी रिक्वेस्ट नहीं है। ये कहाँ पे जाएगा, 14 पे, और 14 के बाद फिर से राइट टर्न कर लेगा। सो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं स्कैन एंड लुक आर सिमिलर, बस एक्सट्रीम एंड हम लुक में स्कैन नहीं करते, और सी स्कैन एंड सी लुक आर एग्जैक्टली सिमिलर, और इसमें भी हम एक्सट्रीम एंड्स को स्कैन नहीं करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम न्यूमेरिकल्स। तो 101% इस पे एक न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट विल बी लाइक यू कैन से 8 to 10 मार्क्स क्वेश्चन जनरली, लेकिन मिनिमम अगर फिर भी कहते हैं तो 6 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आपको जरूर आएगा। एक भी एल्गोरिदम देख सकते हैं, दो एल्गोरिदम भी दे सकते हैं। तो सबसे इजी आपके पास क्या होते हैं, एफसीएफएस और एसएसटीएफ होते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन, अगर टीचर को थोड़ा भी टफ पेपर बनाना होगा ना तो वो आपको ऐसे दे देगा, स्कैन सी लुक दे देगा या लुक स्कैन दे देगा, इन चारों में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बट एक बार आप ध्यान रखोगे ना तो आपको ध्यान रहेगा। तो ये आप एग्जाम से, फिर भी मैं कहूंगी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो अगर ये टॉपिक आप एग्जाम में जब जाएंगे ना तो इसको एक बार 5 मिनट पहले जरूर देख के जाना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और जाते ही अपनी शीट पे पीछे एक बार थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ताकि आपको ना थोड़ा ध्यान रहे, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करते टाइम ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। सो एंड जब ये पेपर हम चेक करते हैं तो जनरली बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अगर पेपर में लुक सी लुक स्कैन और सी स्कैन दिया जाता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर ज्यादा कंफ्यूज करना हो बच्चों को तो हम ऐसे देते हैं, एक स्कैन का दे देते हैं, एक लुक का दे देते हैं। तो मतलब स्कैन दे दिया, सी लुक दे दिया, या सी स्कैन दे दिया या लुक दे दिया, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने ये एक बार एल्गोरिदम कर लिया तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये डोंट लीव दिस टॉपिक। ओके, so I hope this is very very clear to you. Thank you so much.